morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home. Students, yesterday we started chapter 9 Bholi and we discussed from page number 55 to 57. 54 to 57. And today we will proceed page number 58 to 61. Before starting page number 58, let's take a recapitulate of the previous work. In this story, till now, we have studied that there is a girl named Bholi. Her real name Sulekha, but known as Bholi. She was simpleton, and when she was 10 months old, she fell off the cot. When she was 2 years old, she has suffered from smallpox, and till 5 years she did not start speaking. At last, when she learned to speak, she stammered. Her father was worried about her because except her, all the children were healthy and strong. And father was worried about her because it was not difficult for her other sisters to find bridegrooms, and there were no chances for Bholi to get married. Then a primary school was opened in her village, and Bholi got a chance to get education in that school. Bholi was admitted in the school. Her father take her to school and handed over to the headmistress. Bholi find her teacher a very nice lady, a very kind-hearted lady, and she soothed Bholi very well. Bholi think that for this kind lady, I will try my best. Let's continue now. From page number 58. Yes, it will be very easy. हाँ, ये बहुत आसान होगा. टीचर भोली को बोल रही है यहाँ पर. You just come to school every day. तुम्हें केवल प्रतिदिन स्कूल आना होगा. Will you come? क्या तुम आओगी? भोली nodded. Nodded means क्या? Shook head. भोली ने अपना सिर हिलाया ऐसे हाँ भरते हुए. No, say it aloud. टीचर ने कहा नहीं, ऊंची आवाज में बोल करके बताइए. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say. और यस बोलने के बाद भोली खुद सरप्राइज होगी. एस्टोनिश मींस क्या? सरप्राइज्ड, अमेज्ड कि वह यह कह पाई थी. Didn't I tell you? Now take this book. क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब ये पुस्तक ले जाओ. The book was full of nice pictures and the pictures were in colors. बुक भरी हुई थी बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरों से, और सभी तस्वीरें कैसे थी? कलर्स में थी. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. इन सभी की पिक्चर्स उस बुक में थी, वो भी कलरफुल वे में. And with every picture was a word in big black letters. और प्रत्येक पिक्चर के साथ एक वर्ड था बड़े बड़े काले अक्षरों में. In 1 month you will be able to read this book. 1 महीने के अंदर तुम ये बुक पढ़ पाओगी, योग्य हो जाओगी. Then I will give you a bigger book. फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी. Then a still bigger one. फिर उससे बड़ी दूंगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. और कुछ ही समय में तुम सबसे ज्यादा विद्वान हो जाओगी गांव में. Then no one will ever be able to laugh at you. और फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने के योग्य नहीं होगा. People will listen to you with respect. लोग तुम्हारी बात सुनेंगे बड़े सम्मान के साथ. And you will be able to speak without the slightest stammer. Slightest means क्या? least. बिल्कुल कम. और फिर तुम योग्य हो जाओगी बिल्कुल कम हकलाहट के बिना. मीन्स तुम बिल्कुल भी नहीं हकलाओगी. अंडरस्टैंड? समझी? क्वेश्चन की तरह से पूछ रही है टीचर. नाउ गो होम. अब घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. और कल सुबह जल्दी आना.
Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली ने महसूस किया जैसे कोई खुशी होती है तो हम फील करते हैं, वैसे भोली ने महसूस किया जैसे मंदिर की सभी घंटे एक साथ बजने लगी थी. And the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. और जो पेड़ स्कूल के सामने था वह उसने अपने ऊपर खिला लिए थे बड़े बड़े लाल फूल. her heart was throbbing. उसका दिल धड़क रहा था. थ्रोबिंग मीन्स पल्सेटिंग, धड़क रहा था. With a new hope and a new life, एक नई उम्मीद और नए जीवन से. Next time read and find out. Why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? भोली के माता पिता ने बिशंबर का शादी का जो प्रस्ताव था वो क्यों स्वीकार किया? भोली was a dumb girl for her parents and she does not have good looks. And in contrary, Bishambarnath was a prosperous grocer and it was difficult for her father to find a rich bridegroom for Bholi. That's why Bholi's parents accepted Bishambar's proposal for her. Why does the marriage not take place? Last में शादी क्यों नहीं होती है? At the time of the wedding ceremony, Bishambarnath asked for dowry. He asked Bholi's father to give him 5,000 rupees as dowry, and Bholi refused her father to give dowry, and she refused to get married with a greedy person. That's why the marriage could not take place. Thus the years passed. इस तरह से सालों बीत गए. The village became a small town. गांव जो कि अब एक कस्बा बन गया था. The little primary school became a high school. जो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था वो अब हाई स्कूल उच्च विद्यालय बन गया था. There were now a cinema under a tin shed. और वहां पर अब एक सिनेमा भी था टीन शेड के नीचे. And a cotton ginning mill. गिनिंग मीन्स क्या आता है? सेपरेटिंग. जो कॉटन को और सीड्स को अलग करने की जो मिल थी, मशीन थी, वो भी वहां पर लगी थी. The mail train began to stop at the railway station. और जो मेल ट्रेन थी, जो डाक गाड़ी थी, उसने भी उस स्टेशन पर, उनके गांव के स्टेशन पर जो कि कस्बा बन गया था, वहां पर रुकना स्टार्ट कर दिया था. One night after dinner, रामलाल said to his wife. एक रात्रि भोज के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, Then shall I accept Bishambar's proposal? तो तब क्या मुझे बिशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? Yes, certainly. हाँ, निश्चित तौर पर. His wife said. उसकी पत्नी ने कहा, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली बड़ी सौभाग्यशाली होगी कि एक well-to-do, एक rich दूल्हा उसे मिलेगा. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. एक बड़ी सी दुकान है, खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उसके कई हजार बैंक में भी जमा है. Moreover, he is not asking for any dowry. और इससे भी अधिक बड़ी बात यह है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है. That's right. ये सब तो ठीक है. But he is not so young. परंतु वह जवान नहीं है, युवा नहीं है. You know, तुम जानती हो. Almost the same age as I. लगभग मेरी उम्र का ही है. And he also limps. Limps means क्या? Walk lamely. लंगड़ा करके चलता है. और वह लंगड़ा करके भी चलता है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और इससे भी अधिक जो बच्चे हैं उसकी पहली पत्नी के वो काफी बड़े हो गए हैं. So what does it matter? His wife replied. अब पत्नी ने उत्तर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? 45 or 50. It is not great age for a man. 45-50 एक पुरुष के लिए ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है. We are lucky that he is from another village. हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है. And does not know about her pock marks. और वह नहीं जानता है उसके पोक मार्क्स के बारे में, जो चेचक के दाग हैं उनके बारे में.
एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी के बारे में। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव, ये स्कीम स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपना पूरा जीवन अविवाहित ही रहेगी। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ परंतु मैं सोच रहा हूँ भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस मीन्स क्या, फुलिश, मूर्ख, वह मूर्ख क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम काउ, वह तो एक गूंगी गाय की तरह से है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, मटर्ड मीन्स क्या, बुड़बुड़ाया, रामलाल बुड़बुड़ाया, शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, दूसरे कोने में, आंगन के, कोर्टयार्ड मीन्स क्या, ओपन स्पेस इन ए हाउस, खुली जगह, आंगन, आंगन में भोली लेटी हुई थी, जगी हुई अपने चारपाई के ऊपर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, भोली अपने पेरेंट्स की ये धीरे धीरे की जा रही बातों को, मर्मरिंग को सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक बहुत ही अच्छा खाता पीता, वेल टू डू मीन्स क्या, रिच, हाँ ग्रोसर था, पंसारी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब वह आया एक बड़ी पार्टी, बड़ी बारात दोस्तों की और रिश्तेदारों की लेकर के शादी के लिए। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और एक ब्रास बैंड था, बैंड बाजा था, वो एक बहुत ही फेमस पुरानी हिंदी फिल्मों की, भारतीय फिल्म की एक ट्यून बजा रहा था, जो कि जो प्रोसेशन था, जो बारात थी, उसके आगे आगे चल रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा था, दूल्हे के साथ ही भीड़ थी, एक सजे हुए दूल्हे, घोड़े के ऊपर सवार दूल्हे के साथ में। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp and splendor, रामलाल अत्यधिक खुश हो रहा था इतनी ज्यादा शान और शौकत देख करके। pomp and splendor means क्या, शान और शौकत। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने भी नहीं लिए थे कि उसकी चौथी बेटी की इतनी महान, इतनी भव्य, इतनी शानदार शादी होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो कि आई थी इस अवसर के लिए, वो भी भोली से ईर्ष्या फील कर रही थी। Envious थी, envious means क्या, jealous, jealousy फील कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, और auspicious means क्या, pious, पवित्र, और जब पवित्र समय हुआ तो पुजारी ने कहा, Bring the bride, दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress, clad means क्या, ड्रेस, पहने हुए थी, भोली लिपटी हुई थी, पहने हुई थी एक लाल रंग की सिल्क की दुल्हन की ड्रेस। Was led to the bride's place near the sacred fire, भोली को लाया गया था दुल्हन की जगह पर पवित्र अग्नि के पास में। Garland the bride, स्टूडेंट्स यहाँ पर गार्लैंड वर्ब है कि दुल्हन को माला पहनाओ। One of his friends prompted विशंबरनाथ, अब विशंबरनाथ के दोस्तों में से एक ने विशंबर को उकसाया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, और दूल्हा था, उसने पीले गेंदे के फूलों की माला को ऊपर उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, एक औरत ने पीछे से भोली का जो सिल्क का पर्दा था, वेल मीन्स क्या, पर्दा, घूंघट, मास्क, वो पीछे से खींच दिया, भोली के चेहरे से हटा दिया। विशंबर took a quick glance, विशंबर ने फटाफट एक झलक भोली के फेस की देख ली। The garland remained poised, यहाँ पर गार्लैंड क्या है, माला, और जो ऊपर आया था गार्लैंड द ब्राइड, वहां पर क्या है, माला डालना, वो वर्ब था और ये क्या है, नाउन है। The garland remained poised in his hands, poised means क्या, held in balance, माला वहीं की वहीं उसके हाथों में रुक गई, किसके हाथों में, विशंबर के हाथों में। The bride slowly pulled down the veil over her face, दुल्हन ने धीरे से फिर से अपने पर्दे को अपने फेस पर कर लिया। Have you seen her, क्या तुमने उसको देखा? Said विशंबर to the friend next to him, विशंबर ने अपने उस दोस्त से कहा जो कि उसके आगे खड़ा था। She spoke
फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, चेचक के दाग हैं, माता के निशान हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है मैं जवान नहीं हूं, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। परंतु यदि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल आगे बढ़ा और अपनी पगड़ी रख दी, हिज ऑनर, जो कि उसका सम्मान था, एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के कदमों में अपनी पगड़ी, अपना सम्मान रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ह्यूमिलिएट मीन्स क्या, डाउनकास्ट, नीचा दिखाना, मुझे इतना नीचा मत दिखाओ। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं पूरे 5,000 चाहिए, अदरवाइज हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कंसिडरेट मीन्स क्या है, रिगार्ड फॉर अदर्स, कि दूसरों के भी सम्मान कीजिए, दूसरों को भी ध्यान करिए कृपया करके। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, यदि आप वापिस जाएंगे, मीन्स बारात वापिस जाएगी, तो मैं गांव में अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। रामलाल ने कहा। देन आउट विथ 5,000 रुपीज, तो फिर 5,000 रुपए लेकर के आइए। किसने कहा, बिशंबर ने। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, स्ट्रीमिंग मीन्स क्या, फ्लोइंग, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, किसके, रामलाल के। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया आंसू बहाते हुए। ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने नोटों का बंडल था वो दुल्हे के कदमों में रख दिया। On Bishambhar's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant means क्या, victorious. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी, मुस्कुराहट फैली हुई थी। He had gambled and won. Gambled means क्या है, उसने जुआ खेला था तो वह जीत गया था। Give me the garland, मुझे माला दो। He announced, उसने घोषणा की। Once again the veil was slipped back from the bride's face. दोबारा से, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से पर्दा हटा। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, परंतु इस बार उसकी नजरें नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, बिल्कुल सीधी अपने होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नोर हेट, और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही घृणा थी। Only called contempt. Contempt means क्या, hatred. केवल शांत घृणा थी। Bishambhar raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर ने माला को उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए। But before he could do so, परंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोले's hand stuck out like a streak of lightning. भोले के हाथ stuck out means क्या, हिट किया, भोले के हाथों ने हिट किया। like a streak of lightning, एक बिजली की गति से, streak means क्या, flash, and the garland was flung into the fire, और माला उछल करके गिर गई आग में। she got up and threw away the veil, वह खड़ी हो गई और उसने घूंघट को दूर फेंक दिया। पिताजी, said भोली in a clear loud voice, एक स्पष्ट ऊंची आवाज में भोली ने कहा, पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी अमेज, सरप्राइज रह गए थे जब उन्होंने सुना भोली को बिना हकलाहट के बोलते हुए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। रामलाल was thunderstruck. Thunderstruck means क्या, हो चुका, amazed. रामलाल सरप्राइज रह गया। The guest began to whisper, और जो गेस्ट वहां पर आए थे उन्होंने मर्मरिंग स्टार्ट की, कानाफूसी शुरू की। So shameless, कितनी बेशरम, so ugly and so shameless, कितनी कुरूप और कितनी बेशरम है। भोली, are you crazy? shouted रामलाल, भोली क्या तुम पागल हो? रामलाल चीखा।
You want to disgrace your family. तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो. Have you some regard for our इज्जत? क्या तुम्हारे अंदर कुछ सम्मान है, हमारी इज्जत का ख्याल है? For the sake of your इज्जत, said भोली. कि आपकी इज्जत के लिए ही भोली ने कहा. I was willing to marry this lame old man. कि मैं तैयार हो गई थी इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए. But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. परंतु मैं नहीं चाहती, मैं स्वीकार नहीं करूंगी एक तुच्छ, छोटी सोच वाले, लालची और घृणित व्यक्ति को अपने पति के रूप में. I won't. मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी. What a shameless girl. कितनी बेशरम लड़की है. We all thought she was a harmless dumb cow. हम सभी ने सोचा था वह तो एक बहुत ही सीधी सादी गूंगी गाय है. भोली turned violently on the old woman. भोली घूमी बड़ी हिंसात्मक रूप से उस बूढ़ी औरत की तरफ. Yes आंटी, you are right. हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं. You all thought I was a dumb driven cow. आप सभी ने सोचा था कि मैं एक गूंगी बहरी गाय हूँ. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और यही कारण है कि आप चाहते थे मुझे सौंप देना इस निर्दयी बिना दिल के इंसान को. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. परंतु अब गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है. Do you want to hear more? क्या आपको कुछ और सुनना है? Bishambarnath the grocer started to go back with his party. बिशंबरनाथ पंसारी अब अपनी पार्टी के साथ, बारात के साथ वापस चलना शुरू कर देता है. The confused benchman thought this was the end of the ceremony. Confused means bewildered. असमंजस में जो बैंडमैन है, बाजे वाले हैं, वो सोचते हैं कि जो उत्सव है, सेरेमनी है, वो खत्म हो गई है. And struck up a closing song. और वो बजाना शुरू कर देते हैं क्लोजिंग सॉन्ग को. रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल जड़वत खड़ा था. Rooted means क्या? Without any motion. बिना किसी गतिविधि के एक ही जगह ठहर करके खड़ा होता जमीन के ऊपर. His head bowed low with the weight of grief and shame. उसका सर नीचे झुका हुआ था बहुत अधिक दुख से. ग्रीफ मीन्स क्या? शोरव, दुख से और श्रम से. The flames of the sacred fire slowly died down. और जो लपटे थी पवित्र आग की, वो धीरे धीरे नीचे आ गई थी, खत्म हो रही थी. Everyone was gone. हर कोई जा चुका था. रामलाल turned to भोली and said. रामलाल भोली की तरफ पलटा और कहा, But what about you? No one will ever marry you now. परंतु अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा. What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. Steady means क्या? Firm. और सुलेखा ने एक ऐसी आवाज में बोला जो आवाज बहुत ही शांत और दृढ़ थी, निश्चय की आवाज थी. Don't you worry पिताजी. पिताजी आप चिंता नहीं करें. In your old age I will serve you and mother. आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी. And I will teach in the same school where I learned so much. और मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना अधिक सीखा है. Isn't that right, ma'am? क्या यह सही नहीं है मैम? The teacher had all along stood in a corner. टीचर अभी एक कोने में खड़ी हुई थी, watching the drama. ये सब नाटक देख रही थी. Yes, भोली of course. हाँ भोली बिल्कुल सही, वास्तव में. She replied. उसने उत्तर दिया. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction. और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि के भाव थे. सेटिस्फेक्शन मींस क्या? ग्रेटिफिकेशन. बहुत ही संतुष्टि के भाव उसकी नजरों में थे. That an artist feels. जो कि एक आर्टिस्ट फील करता है, एक कलाकार महसूस करता है. When contemplating the completion of her masterpiece. Contemplating means क्या? Meditating. ध्यान पूर्वक देखता है अपने मास्टरपीस को. Completion. Completion means क्या? Accomplished. पूरा होने पर. Of her masterpiece. अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के पूरा होने पर जिस तरह के संतुष्टि के भाव एक आर्टिस्ट के मन में होते हैं, एक आर्टिस्ट की आंखों में होते हैं, वही भाव भोली की टीचर की नजरों में थे. Students, we have discussed chapter Bholi
I hope it is clear to you. Thank you.